ओके, तो सबसे पहली चीज है हमारे पास में जो हमें ट्यूनिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करनी है, दैट इज इवन लेंथ कॉलन रो, राइट। इवन लेंथ कॉलन रो, ठीक है। सो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जांपल हम जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्यूनिंग मशीन है या जो कंट्रोल है ट्यूनिंग मशीन का, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, राइट। So first we take an example for even length of parallel, right? So we take an example A, B, A, B, right? Then B, A, B, A, right? Now check even length है या नहीं है, 1 2 3 4, right? So that is called even length. Okay, if you reverse that particular string, so you find the same string, so that particular example is lie on even length palindrome, right? Okay, just a minute. Okay, so अब नेक्स्ट चीज अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास में इवन एंड ऑड लेंथ, सॉरी इवन लेंथ आपके पास में क्लियर। अब लॉजिक क्या इंप्लीमेंट करना है, अगर हमारे पास में पैलिंड्रोम है तो फर्स्ट करेक्टर जो होगा वो लास्ट करेक्टर के बराबर होगा, राइट। सेकंड जो करेक्टर होगा सेकंड लास्ट करेक्टर के बराबर होगा, तभी हमारे पास में स्ट्रिंग क्या होगी, पैलिंड्रोम होगी, राइट। तो हम क्या करें, हम एक मैकेनिज्म तो सिंपल है कि हम क्या करें, पहले पार्ट को रीड करें, ए को रीड करें, राइट। और कब तक रीड करते रहें, जब तक कि हमारे पास में स्ट्रिंग एंड पे नहीं पहुंच जाए, राइट। जब एंड पे पहुंच जाए तो उससे पहले वाले सिंबल को हम चेक कर लें क्या वो इक्विवेलेंट है फर्स्ट वाले के। इफ इट इज राइट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है चीज, राइट। सो इस चीज को समझते हैं। तो सपोज अगर हम राइट इट डाउन करते हैं या मीनिंग समझते हैं, अभी हम ट्रांजेक्शन फंक्शंस की जगह इसको सिंपल मीनिंग पे समझ लेते हैं कि हमारे पास में तो सबसे पहले हमारे पास में हमने स्टार्टिंग पोजीशन पे रखा, राइट, ए पे, क्लियर। अब आज ट्रांजेक्शन फंक्शन आप लोग अपने आप लिखने की कोशिश करोगे, हम आपको केवल क्या कहते हैं फ्लो बता रहे हैं, राइट। वी डिस्कस ओनली द फ्लो, क्लियर। सो अब if you want to write it down the transaction function of this particular part, so you can try on your basis, right, how to write the transaction function for this particular situation. Okay, now the first part is we have a initial position A, right. Now the requirement is that we shift this position to next, right, and we change this particular symbol to specific symbol, right. So suppose in next iteration we convert this symbol with asterisk or some other, and B A B B A B A, and then the character, and now we shift it into this part, right. Clear, isn't it? Now again, the transaction function you want to write, we move continuously on our right hand side until unless we don't found the null character, right, or blank character. So it means you write it down the number of iteration for to checking the condition null, right. So the next iteration you want to write, okay, move further, right, B A B B A B A delta, right, right, to move further until unless you don't find the null character. So at the last you find out the null character. So how to write the transaction function, try on your basis, and later we discuss what is the transaction function of these particular states. Okay, clear. Now after receiving the null character, what is the next step? You move the cursor in backward direction, right. In above diagrams, right, we move the cursor in forward direction until unless
we don't find the null character. If we find the null character, the next move is that we move the cursor in backward direction, right? So it means you write it down the next transaction functions, right? Try on your basis, and then b a b b a b a and data, right? Now the backward position is A, right? If the symbol is A, so the corrective action you want to perform, you replace this A with the delta, right? So you write it down the transaction function again on your basis, right? The corrective action is that B, A, B, B, A, B. Now this A is replaced with delta. So it means the clear cut indication. Yeah, tell me beta. सर ए को डेल्टा से रिप्लेस तब करेंगे जो फर्स्ट कैरेक्टर से मैच होगा तब ना। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। सर मैचिंग कैसे चेक करेंगे सर? अब बता रहा हूँ बेटा, जैसे आपने लॉजिक लगाया हुआ है कि आपने स्ट्रिंग को फर्स्ट को ए को पढ़ लिया, राइट? तो ए आपके पास में स्टोर है, ओके। अब ए को आपने रिप्लेस कर दिया, एस्टेरिक से क्यों रिप्लेस कर दिया? द मीनिंग इज दैट कि अगर हम बैकवर्ड आएंगे तो हमें ये तो मालूम चले कि हमारे पास में ए कहाँ पे, राइट? क्लियर? अब हम फॉरवर्ड तब तक मूव करेंगे, हमारा लॉजिक क्या था, जब तक कि हम स्ट्रिंग के नल कैरेक्टर पे नहीं पहुंच जाएंगे या ब्लैंक कैरेक्टर पे नहीं पहुंच जाएंगे। हम ब्लैंक कैरेक्टर पे पहुंच गए, राइट? जब ब्लैंक कैरेक्टर पे मिल गया तो हमने उसको बैकवर्ड मूव किया और जो भी लास्ट कैरेक्टर था उसको पिक किया। सो लास्ट कैरेक्टर अगर ए है और पहले से हमारे पास में ए स्टोर है, क्योंकि हमारा जो ट्यूनिंग मशीन है वो क्या कर रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर को अपने पास स्टोर करके रख रहा है, राइट? कब तक स्टोर करके रख रहा है? जब तक कि हमारे पास में हम लास्ट में से पहुंचने के बाद एक बैकवर्ड मूव नहीं करते हैं, राइट? एंड बैकवर्ड मूव पे जो कैरेक्टर है वो स्टोर कैरेक्टर के बराबर है या नहीं है? अगर है तब तो ठीक है, हमें आगे प्रोसीजर करना है, नहीं तो मशीन हॉल्ट हो जाएगी। अगर सपोज यहाँ पे बी होता है एक ही जगह, तो ए और बी मैच नहीं करेंगे तो कंडीशन हॉल्ट होगी। मीनिंग क्लियर है बेटा? ओके। और अगर कंडीशन मैच कर गई, अगर ए है तो करेक्टिव एक्शन चेंज है, तब मशीन हॉल्ट नहीं करेगी, तब मशीन आपके पास में कंटिन्यूएशन प्रोसेस में जाएगी कि हमारे पास में रिमेनिंग करेक्टर्स चेक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो एट दैट केस हमें एंडिंग पोजीशन को शिफ्ट कर देना है। यानी अब हमारे पास में सपोज पहले स्ट्रिंग की लेंथ थी 8 करेक्टर्स, नाउ अब स्ट्रिंग की लेंथ हो गई हमारे पास में 7 करेक्टर। हमने क्या किया, लास्ट करेक्टर को रिप्लेस कर दिया डेल्टा से। अब क्वेश्चन जनरेट होता है, सर हमने इसे डेल्टा से क्यों रिप्लेस किया, हम किसी और करेक्टर से भी तो रिप्लेस कर सकते थे। यस कर सकते थे बेटा। हमने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर मशीन को डिजाइन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम किसी भी मेथड से डिजाइन कर सकते हैं, राइट? बट अनटिल अनलेस हमारे पास में कॉन्सेप्ट फॉलो होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम किसी दूसरे करेक्टर से रिप्लेस करते हैं तो हमें नहीं पता कि हमारे पास में कितने नंबर ऑफ सेट्स करेक्टर हैं। अभी हमने ए बी लिया है, मान लो इनपुट सेट हमारे पास में ए बी सी करेक्टर का होता, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? सो मशीन कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर हम ए को किसी और करेक्टर से रिप्लेस कर रहे हैं, बी को किसी और करेक्टर से, सी को किसी और करेक्टर से, और ये मशीन फिर हमारे पास में यूनिवर्सल मशीन नहीं रहती, राइट? आपको मशीन को हर बार लॉजिकली चेंज करना पड़ता अगर सेट ऑफ इनपुट्स आपके पास में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। बट जो हम मशीन डिजाइन कर रहे हैं, राइट, दैट इज अ यूनिवर्सल मशीन। यूनिवर्सल मीन्स कि आपके पास में यू नेवर चेंज द डिजाइनिंग पैटर्न, राइट? You can satisfy the all conditions if the input alphabets are 2 or 3 or more, right? So that mechanism work for all types of strings, right? If the string contain 2 characters or more than 2 characters, right? So now अब आपने मैकेनिज्म क्या इंप्लीमेंट किया? मैकेनिज्म इंप्लीमेंट था हम लास्ट वाले पार्ट को फर्स्ट वाले से चेक करेंगे, हमेशा यही मैकेनिज्म है, राइट? और अगर हम जनरल सेंस में समझे तो हमारे पास में जो सेकंड कैरेक्टर है उसे हम मैच कर रहे हैं, क्लियर? किससे? सेकंड लास्ट से। तो हम क्या करें, हमने अगर फर्स्ट कैरेक्टर पढ़ लिया तो हम कर्सर को आगे मूव कर जाएंगे, तो हमारी अब फर्स्ट पोजीशन क्या है? सेकंड वाला पार्ट है, राइट? तो जब सेकंड वाला पार्ट है तो हमें क्या करना है, उसको सेकंड लास्ट से कंपैरिजन करना, और हमने सेकंड लास्ट पार्ट को क्या कर रखा है, लास्ट में कन्वर्ट कर रखा है। तो मैकेनिज्म क्या है, सिंपल मैकेनिज्म है, हमें फर्स्ट को लास्ट से कंपैरिजन करना है। इफ द स्ट्रिंग आर सेम तो हमें प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज वी होल्ड द मशीन। तो सिंपल लॉजिक क्या हुआ, फर्स्ट एंड लास्ट मैच करना है। अब हमारे पास में क्योंकि स्ट्रिंग स्टोर है तो हमेशा हम फर्स्ट पोजीशन कैसे बनाएंगे, तो जो हेड की करेक्ट पोजीशन है दैट इज फर्स्ट पोजीशन, और लास्ट वाली पोजीशन को हम कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं तो हमें पता है नल कैरेक्टर हमारे पास में हमेशा लास्ट होता है। तो अगर मैच हो जा रहा है कैरेक्टर तो हम उस कैरेक्टर को नल से रिप्लेस कर दे रहे हैं। दैट मींस उसके आगे कितने भी नल हो, लेकिन अगर पहला नल मिल गया तो इट मींस हमारी स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है, राइट? दैट इज द लास्ट पोजीशन। सो दैट मैकेनिज्म इज मेंटेन फॉर दिस पर्पस, राइट? नाउ अब हमारे पास में क्या हुआ, हम
डेल्टा पे रिप्लेस कर गए, राइट। तो करंट पोजीशन हमारे पास में कहाँ पे है, डेल्टा पे है, राइट। क्लियर। अब हमें क्या करना है, फिर से हमारे पास में मैकेनिज्म हमें स्टोर करना है, राइट। तो डेल्टा के बाद में हमारे पास में क्या आएगा, अब फिर से हमारे पास में कर्सर को हमें कहाँ तक मूव कराना है, हमें जब तक कि एस्ट्रिक नहीं मिल जाए। तो अगेन यू राइट इट डाउन द फंक्शन ऑन योर बेसिस, राइट। तो हमने एस्ट्रिक से मूव कराया, राइट, ए बी 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 ए, राइट, बी एंड डेल्टा। क्लियर। अब हमने इसको मूव कराते हुए कहाँ पर पहुंच गए, जब हमें एस्ट्रिक मिल गया, राइट। तो एस्ट्रिक मिल गया, इट मींस हम कहाँ पे पहुंच गए, ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए। नाउ अब जब हम ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच गए तो हमें आगे वाली पोजीशन को इनिशियल पोजीशन बनाना है। तो हमने नेक्स्ट क्या किया, फिर से ट्रांजैक्शन फंक्शन लिखा, और अब हमने क्या किया, अपने पॉइंटर को बी पे शिफ्ट कर दिया, राइट। ओके। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फंक्शन यू राइट इट डाउन ऑन योर बेसिस अगेन, राइट। क्लियर। अब हमारे पास में देखो, अब हमें क्या करना है, अगेन फिर से इस बी को हमें एस्ट्रिक में कन्वर्ट करना है और कर्सर को आगे मूव कर देना है। तो एस्ट्रिक देन ए देन बी, राइट, देन बी देन ए देन बी देन डेल्टा एंड देन अप टू, राइट। ओके। नाउ द कर्सर मूव इन ए पार्ट। अब इसको आपको कब तक मूव कराना है, अगेन यू राइट इट डाउन द ट्रांजैक्शन फंक्शन until unless you find out the blank character. Okay, so asterisk a b b a b, right, and delta. And now if you reach the final state, clear, so what is the mechanism, again if you find the null character, so you backward move. So again you will write it down the transaction function for the backward move, asterisk a b b a b delta and up to so, right. Now the last character you stored in your memory, that is b, and you compare that character with the help of b, right. So both are same, right. If both are same, so what is the next action, you shift null position into that place. So next iteration is that asterisk a b b a. Now this b is replaced with delta, and now the current position is delta. Now what is the next action, again you move the this head pointer until unless you find out the asterisk symbol, right. So it means okay, so the current situation of the tape is that asterisk a b b a delta, right, and you reach the state of asterisk. Now if the asterisk is occur, what is the next action, the next action you move further and replace with that character to asterisk and again move further. तो हम इन दोनों पार्ट्स को एक साथ भी लिख सकते हैं, आप ट्रांजैक्शन फंक्शंस अलग अलग लिखोगे, हम भी अलग अलग लिखते हैं, चलो, राइट। अगेन हमने इसको क्या मूव किया, एस्टेक से मूव कर दिया, राइट, एंड बी बी ए डेल्टा अप टू सो ऑन, and the pointer is lie on the b, right. Okay, again you move this pointer until unless you find out the null character or delta. So the next iteration is that asterisk, right, b b a and delta, right. So you is the state delta. Okay, now if the delta is occur, null character is occur, so what is the corrective action, you shift that character in back position, right. So the next iteration is asterisk b b and a, right. So अब हम merge the step, right. If you find out the current situation a, so you replace with delta, right, and this. तो हमने दो स्टेप्स यहाँ पे, टू स्टेप्स एक साथ लिख लिए, जो पीछे अभी हम लोग करते आ रहे थे, तो दोनों स्टेप्स मर्ज कर दिए हमने।
clear, right? So अब delta आ गया, again you move that delta, right? Sorry, not delta, you move the cursor position again and check the asterisk. So if the first asterisk occur, so the condition is stop here, and what is the next corrective action? You again replace with B in asterisk and move further, right? That is B. That now if you move this cursor again, right, in backward position, so again delta is occurred, so you replace with delta, right? So the next iteration is I combine the step, right? So don't worry about that, right? Say replace with delta, right? And the current position is delta, right? Now if you move further, so again the asterisk is occurred, so that is a sign there is no symbol, right? That is the last character, and before that you find out the asterisk, so there is no comparison, there is no character to lie for the comparison purpose, right? If the no character is lie for the comparison purpose, it means your string are satisfied. Why? Because the all strings or AB combinations are converted with the asterisk, and your last pointer is lie on the null pointer. It means all the characters after that asterisk, right, that are neutralized with the asterisk symbol. So that is a current scenario of palindrome string, right? Isn't it बेटा? क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो. तो अब मशीन कैसे डिजाइन करेंगे इस चीज पे फोकस करते हैं. तो डायरेक्ट हम लोग मशीन डिजाइनिंग की बात करते हैं, यानी हम ट्यूनिंग मशीन सीधे डिफाइन करते हैं, साथ में ट्रांजेक्शन फंक्शन भी लिखते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमारे पास में Q0 स्टेट है. ओके, नाउ अब Q0 से हमारे पास में हॉल्ट पोजीशन क्या है. अब आपको बहुत सारी चीजें सोचनी होती है मशीन डिजाइन करते समय. तो Q0 से हमारे पास में हम Q1 स्टेट कब पहुंच रहे हैं, जब हम A को एस्टेरिक से रिप्लेस कर रहे हैं और राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, राइट? तो सपोज हमने, क्योंकि यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हम इसको सिंपल वे में डिजाइन कर लें इस तरीके से, ठीक है? तो हमारे पास में यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा हुआ है, ए को हमने रिप्लेस किया एस्टेरिक से और राइट मूव कर लिया, राइट? आप इस तरीके से भी लिख सकते हो. क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? हम कहाँ पे पहुंच गए? Q1 पे. क्लियर? नाउ अब Q1 पे हमें क्या करना था? Q1 पे हमें क्या करना है? आपको हमें या तो ए ऑकर हो या बी ऑकर हो, क्योंकि इनपुट सेट्स क्या है? केवल ए बी है. अगर इनपुट सेट्स ए बी सी कुछ भी होता तब भी आपको यही सेम यूज करना होता. सो डोंट कंफ्यूज, राइट? अगर हम आपसे स्ट्रिंग बोलते हैं ए बी सी डी, इस तरीके की कोई स्ट्रिंग होती है, सो ट्यूनिंग मशीन में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपके पास में कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन सेम, राइट? क्या कॉन्सेप्ट था? वी कंपेयर फर्स्ट करेक्टर टू लास्ट करेक्टर, second character to second last, third character to third last, up to so, right? So आपको क्या करना है मशीन में? यहाँ पे एक सेल्फ लूप लगाना है, राइट? आइदर ए ऑकर हो और बी ऑकर हो, in both the situations you move further, right? In move right direction. So A sorry, or B you move the right direction. Okay, so that is a part for Q1. Now the next situation is when the null character is occur, so it means a से आप right move करते जा रहे हो, at the end आपको क्या मिल रहा है? डेल्टा मिल रहा है, right? So at that time the new state is come to the picture, right? So it means delta and delta, right? Right, clear? यानी आपने करेक्टर पढ़ा, लास्ट करेक्टर डेल्टा है, उसके आगे वाला भी डेल्टा है, राइट? क्लियर? तो आप कहाँ पे पहुंच गए? आप Q0 Q1 Q2 है, सॉरी, ठीक है? आप Q2 पे आ गए, राइट? जब आप Q2 पे आ गए तो आपको क्या करना था? आपको एक कैरेक्टर पीछे मूव करना था, राइट? सो आपने यहाँ पे लिखा हमारे पास में A मिलेगा, राइट? एंड देन डेल्टा एंड L, राइट? हमने क्या किया? आपके पास में जो भी लास्ट कैरेक्टर था उसको डेल्टा से रिप्लेस कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड मूव कर दिया. क्लियर? नाउ वी फाइंड आउट द Q3 सिचुएशन. In Q3, again either A or B, right? Whatsoever is occurred, right? You further move left hand side. So you use the self loop and define A comma A, right? Left, right? Or B or B or left, right? Isn't it? Now this part is complete. Now after performing the Q3, you again find out the Q0 situation, right? क्योंकि आप कहाँ पे आ जाते हो? In the beginning, right? Clear?
और इन द बिगिनिंग पे आपके पास में क्या होता है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक और आर, राइट, क्लियर। आपने क्या किया, जब आप बिगिनिंग पे आए तो आप लास्ट वाली पोजीशन से आप चेक करते आ रहे हो, आपको एस्ट्रिक के कंपैरिजन में मिल गया एस्ट्रिक, तो आपने इसको राइट मूव करा दिया, क्लियर। अब राइट मूव कराने के बाद, क्लियर, अगर आपको बी मिलता है स्टार्टिंग में तो यही सेम चीज आप बी के लिए रिपीट कर दो। आपने बी के लिए क्या लिखा हुआ है, बी है, देन एस्ट्रिक है, देन आपको राइट मूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में स्टेट क्या होगी, दैट इज कॉल्ड Q4। Q4 पे आपको सेल्फ लूप लगा देना है, राइट। किसके लिए, आपके पास में ए और राइट के लिए, ठीक है, और बी और राइट के लिए, ठीक। यहाँ पे भी कोई सर दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, सर बी एस टी का राइट मूव करने वाला ट्रांजेक्शन हम जीरो पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं एक के साथ ही? देखो आप क्या कर रहे हो, जस्ट यहाँ पे समझना है इस चीज को, जो चीज का आपको कंफ्यूजन है वो चीज यहाँ पे क्लियर हो। हम कहाँ पे पहुंचे, हमने इस पार्ट को मूव करते हुए हम कहाँ पे पहुंच गए, एस्टिक पे। तो जब हम एस्टिक पे मूव करते हैं, एस्टिक पे पहुंच जाते हैं, तो एस्टिक का मतलब हो गया हम एस्टिक पे पहुंच गए तो हमें राइट मूव करना और यहाँ पे एस्टिक रिप्लेस कर देना है। तो देखो हमने क्या किया हुआ था, यहाँ तक हम पहुंचे, राइट, दिस स्टेट। अब हम लास्ट स्टेट पे आ गए, यानी ये इनिशियल स्टेट है Q0, तो ये कब मिल रही है, जब एस्टिक। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस एरो को आगे मूव कराते हैं और उस बी को एस्टिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एस्टिक के साथ में हमने आउटपुट में क्या किया, इसको एस्टिक में कन्वर्ट कर दिया और कर्सर को आगे मूव कर दिया। यही पार्ट कर रहे हैं, तो हमने यही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी। तो यही चीज हमने यहाँ पे भी आपके पास में लिखी हुई है, देखो एस्ट्रिक एस्ट्रिक आर। अब आइदर ए हो और बी हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम स्ट्रिंग दे रहे हैं वो ए बी से स्टार्ट होगी कि बी ए से स्टार्ट होगी कि बी बी से स्टार्ट होगी, वॉट। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्या पता है कि अगर पहला कैरेक्टर है तो उसे लास्ट से मैच करना है, दैट्स इट, राइट। अगर सेकंड कैरेक्टर है तो अब इनपुट स्ट्रिंग दो है, तो हमें मशीन को दोनों के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। तो हमने ए के लिए भी डिजाइन कर दिया और बी के लिए भी डिजाइन कर दिया। अब मशीन ए के लिए भी वर्क करेगी और अगर बी ऑकर होगा तब भी वर्क करेगी। देखो करेक्टिव एक्शंस दोनों में सेम है। अगर इसी तरीके से मशीन में सी और डी होता तो यहाँ पे आपके पास में आपको सी के लिए भी सेम चीज डिजाइन करनी पड़ती है और डी के लिए भी सेम चीज डिजाइन करनी पड़ती है। देयर इज नो चेंज, राइट। बट आपके पास में इनपुट अलग अलग है, तो आपको हर एक के लिए इनपुट के करस्पॉन्डिंग उसका करेक्टिव मैकेनिज्म डिफाइन करना पड़ेगा। बट द मैकेनिज्म आर सेम, right, mechanism are not changed, mechanism are same, but you design a machine, right, so you define the different inputs for the same output, right. So you define each and every input but the corrective actions are same, right. Now again the same part, if the delta is occur, right, so move delta and then right, clear, that is part. Now again that is a state of Q5 and again you replace with, अब यहाँ पे b के लिए लिखेंगे तो b डेल्टा, ठीक है, एंड देन लेफ्ट, क्लियर। नाउ द स्टेट इज Q6 एंड Q6 पे आइदर ए और, ठीक है, यहाँ पे हम लेफ्ट मूव कर जाएंगे, बी है, बी के लिए लेफ्ट मूव कर जाएंगे, ओके। सो दिस इज, अब आफ्टर दिस अगेन हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर से हम कहाँ पे पहुंचेंगे, Q0 पे। और ये सिचुएशंस अब आपके पास में क्या है, सेम है, तो हमने दोनों को बीच में लिख दिया, इसीलिए यहाँ पे आपके पास में क्या है, एस्टेक एस्टेक आ रही है, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अब लास्ट कंडीशन क्या है, अगर केवल आपके पास में स्ट्रिंग में क्या बचेगा लास्ट में, देखो सारी जगह एस्टेक बच गया और अब आपके पास में क्या बचा, डेल्टा। अगर डेल्टा और डेल्टा ही बच रहा है तो हमारे पास में मशीन कहाँ पे पहुंच जाएगी, हाल्टिंग पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हॉल्ट, किस कंडीशन में, डेल्टा डेल्टा एंड आपके पास में एल लेफ्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट पे पूछे मूव करेंगे तो हमें डेल्टा मिलेगा, तो ये मशीन हमारे पास में हॉल्टिंग कंडीशन की होगी। रिमेनिंग सारे पार्ट में हमारे पास में मशीन फर्दर या फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगी, नॉट फर्दर, राइट, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करेगी। सो दैट इज अ मशीन फॉर even length of palindrome. Now the question is generate. If you want to convert this machine into odd length palindrome, so think on your basis how to convert the odd length palindrome machine, right? So think it and give me the answer. What is the logic to implement odd length palindrome machine, right? अब अगर हम ऑड लेंथ मशीन की बात करते हैं तो ऑड लेंथ मशीन में हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है, देखो ऑड लेंथ मशीन में क्या है, 0010। अब अगर हम थोड़ी देर के लिए इसका प्रोसेसिंग समझें तो हम यहाँ पे आपको केवल हिंट करेंगे, आप बनाओगे अपने बेसिस पे, ठीक है, 00, ठीक है, 1,
0 0 एंड देन डेल्टा अप टू 100, राइट। अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने फर्स्ट कैरेक्टर को पढ़ा, राइट, और हमने क्या किया, अपने कर्सर को लास्ट तक मूव किया। लास्ट तक मूव करने के बाद में हमें क्या करना था, उस लास्ट वाले कर्सर के करस्पॉन्डिंग हम लोग चीजों को चेंज कर देते थे, यानी हम इस डेल्टा को यहाँ पे शिफ्ट करते थे। अब हम थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास में इवन नहीं है, ऑड है, राइट। तो हमने क्या किया, पहले वाले कैरेक्टर को तो हमने चेंज कर दिया एस्टेरिक से, तो हमने इसको एस्टेरिक से चेंज कर दिया, राइट, क्लियर, ओके। 0 1 0 0 डेल्टा, राइट। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हमने पॉइंटर को यहाँ पॉइंट करा दिया, क्लियर। अब हमने अपने पॉइंटर को तब तक मूव किया जब तक कि हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल गया। तो हमारे पास में एस्टिक 0 1 0 0 एंड डेल्टा, और अब हमारे पास में करंट पोजीशन क्या हो गई, डेल्टा, राइट। अब रिमेनिंग पार्ट क्या था हमारे पास में, फिर से वही चीज थी, हमने इस डेल्टा को रिप्लेस कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे। तो हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट क्या हो गया, एस्ट्रिक 0 1 0, राइट, ये डेल्टा हमारे पास में रिप्लेस हो गया, ठीक, और हमने कर्सर को एक पीछे मूव कर दिया, क्लियर। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, यहाँ तक का पार्ट सेम था जैसे प्रीवियस था। फिर से हमने इसको मूव किया, हम कहाँ पे आ जाएंगे, एस्ट्रिक पे। फिर से हमने इसको चेंज किया तो हमारे पास में क्या मिल गया, एस्ट्रिक, okay, and then asterisk, then 1, then 0, then delta, okay, clear। so ये हमारे पास में अब 1 पर गया, क्लियर, यही चीज होगी। यहाँ तक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमारे पास में नेक्स्ट, हाँ बेटा, सर ये एस्ट्रिक एस्ट्रिक जब हम लोग जीरो से एस्ट्रिक पे मूव कर रहे हैं, हाँ मतलब फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, तो सर हाँ, उसका ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखेंगे, मतलब एस्ट्रिक एस्ट्रिक ओके, कॉमा लेफ्ट। ये लिखा हुआ है बेटा, देखो हमारे पास में एस्टिक एस्टिक नहीं, हमारे पास में ये पार्ट रिपीट होने लगता है ना, जैसे हम यहाँ से लौट के इस वाली पोजीशन पे आए, ठीक है, तो फिर से ये वाला स्टेप अभी हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे जब हम डायग्राम बनाएंगे। तो आपका जो डाउट है उसको हम डायग्राम पे क्लियर करेंगे, राइट। हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन फंक्शन लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करें, इस बार तो यूपीटीयू में आपके पास में ऑब्जेक्टिव है, बट अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें तो मार्क्स किस चीज पे मिलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आइटेशंस में डेल्टा फंक्शन लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको इस डेल्टा फंक्शन को यहाँ पे लिखना है, तो आपको अगर यहाँ चीज क्लियर होगी तभी आप यहाँ पे लिख पाओगे, क्लियर। तो हम आपको मशीन पे क्लियर करेंगे कि हमने जो ये प्रोसेस समझा हुआ है उसको हम मशीन पे कैसे लिखते हैं, राइट। यही चीज पीडीए में भी थी, यही चीज यहाँ पे भी है, तो थोड़ी सी देर पेशेंस रखो, क्लियर होगा, राइट। अब हमारे पास में 1 पे आए, राइट। सो जब हमारे पास में 1 पे 1 पे मूव किया तो हम 1 को तब तक मूव करेंगे जब तक कि हमें डेल्टा नहीं मिल जाए, राइट। ये आइटेशन भी हमें समझ में आ रहा है, जब डेल्टा मिला तो हमने इस 0 को किससे कन्वर्ट कर दिया, डेल्टा से, क्लियर। और अब हमारे पास में जब हमने इस 0 को डेल्टा से कन्वर्ट किया तो फिर से हम फर्दर मूव करेंगे कहाँ तक, एस्टिक तक। अब जब एस्टिक पे हमारे पास नेक्स्ट वाला 1 आएगा, ठीक है, यानी हमारे पास में करंट सिचुएशंस क्या होंगी, एस्टिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक डेल्टा, राइट, डेल्टा अप टू 100, ठीक है। और अब हमारे पास में हम मूव करके कहाँ आ चुके होंगे, इस डेल्टा पे आ चुके होंगे, क्लियर। तो हमने इसको फिर फर्दर मूव किया तो हमारे पास में हम कहाँ पे आएंगे, एस्टिक पे। तो जब हमारे पास में डेल्टा के बगल में एस्टिक मिलने लगेगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं सोचना है इस मशीन में, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, चाहे इवन लेंथ हो या ऑड लेंथ हो, केवल आपके पास में क्या करना है, डेल्टा के बाद अगर हमें एस्टिक मिल गया तो हमें मशीन को सिंपल हॉल्ट करा देना है, आगे कुछ नहीं करना है। यानी डेल्टा के करस्पॉन्डिंग अगर हमें एस्टिक मिल गया इमीडिएटली, तो हमें फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव नहीं कराना है, हमने मशीन को सीधे हॉल्ट करा देना है, राइट। अब इसका हम लोग डायग्राम समझते हैं, तो जो आपका डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या था, Q0 स्टेट थी, राइट। अब Q0 पे हमारे पास में पहला पार्ट क्या था, Q1 स्टेट। तो अभी हम आपको केवल Q1 स्टेट की बात करते हैं। तो Q1 स्टेट में किसी को कोई डाउट है, Q1 स्टेट कब मिल रही है, जब 0 हो, एस्टिक हो तो राइट पोजीशन मूव करें, राइट। अब इसी चीज को हम 1 के लिए भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे हम पैरेलली अब दोनों चीजें चल रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेट का नाम अभी नहीं लिख रहे हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, 1 है, एस्टिक है और आर, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, सेम है, क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, Q1 पे अगर 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है तो आपको क्या करना था, हमें आगे मूव करते जाना था राइट डायरेक्शन में, ठीक है,
1 मिल रहा है तब भी राइट डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पे भी सेम चीज होगी, 0 0 राइट एंड 1 1 राइट। क्लियर? यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हुआ? नाउ इसके बाद आपके पास में Q2 स्टेट थी, तो Q2 स्टेट का मतलब क्या हुआ था, डेल्टा डेल्टा और आपके पास में हम लेफ्ट मूव करेंगे, तो ये Q2 स्टेट होगी। क्लियर? अब देखो Q2 के बाद हो सकता है आपके पास में हमें एस्ट्रिक और एस्ट्रिक की सिचुएशंस मिल जाए। ठीक है, तो हमारे पास में स्ट्रिंग सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था ना, डेल्टा के पहले हमारे पास में क्या मिल गया, एस्ट्रिक। तो लेफ्ट मूव करने के बाद इन केस अगर आपके पास में सिचुएशन क्या है, एस्ट्रिक मिलता है और उसके आगे आपको एस्ट्रिक मिल जाता है, तो हमें मशीन को हॉल्ट करा देना है। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ पे भी होगी। क्लियर? इस मशीन को हमें हॉल्ट करा देना है। क्लियर? रिमेनिंग सारा पार्ट एज इट इज है, बस हॉल्टिंग की कंडीशन चेंज हो गई। यहाँ Q3 लिख दो, ये पार्ट है आपके पास में Q डेल्टा 1 का, राइट? ओके, और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, 1 डेल्टा 1 का। ठीक है, ये आपके पास में नेक्स्ट Q हो गया। क्लियर? यहाँ पे सेल्फ लूप लगाओगे, यहाँ पे भी सेल्फ लूप लगाओगे। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे आपको 0 0 लेफ्ट लेफ्ट लिखना है, 1 1 लेफ्ट लिखना है। सेम चीज यहाँ पे भी है, 0 0 लेफ्ट लिखना है, 1 1 लेफ्ट लिखना है। अब इस केस से आप यहाँ वापस आओगे Q0 पे, और इस केस से भी आप कहाँ वापस आओगे, Q0 पे। और ये कंडीशन क्या है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक आर की। अब यहाँ पे Q2 के बाद अगर हमारे पास में क्या सिचुएशन थी, देखो अभी हम लोगों ने समझा था, अगर डेल्टा के बाद में एस्टिक, यानी इस एस्टिक के करस्पॉन्डिंग अगर हमें एस्टिक मिल गया, तो इट मींस हमारे पास में क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ऑड लेंथ और इवन लेंथ में क्या हुआ, केवल आपके पास में हॉल्टिंग की पोजीशन चेंज हो गई। हॉल्टिंग में पहले क्या था, डेल्टा और डेल्टा पे हम हॉल्ट कर रहे थे, अब हम हॉल्ट कर रहे हैं एस्टिक और एस्टिक पे हॉल्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवन लेंथ मशीन एंड ऑड लेंथ मशीन, राइट? तो अब थोड़ा सा आप दोबारा एक बार अपने बेसिस पे सोचना, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। अभी हमने बोला हुआ है, मे बी आपको शायद क्लियर हुई हो, मे नॉट बी, शायद नहीं क्लियर हुई हो, स्टिल आई डोंट नो। सो आप एक बार अपने बेसिस पे इस चीज को जब डिजाइन करोगे और सोचोगे, तो लॉजिकली आपको ये चीज समझ में आएगी कि हॉल्टिंग में केवल डिफरेंस है, रिमेनिंग सारा प्रोसेस आपके पास में स्टिल सेम है, अगर हम इवन लेंथ बनाएं या फिर हम ऑड लेंथ बनाएं, राइट? आपको हम एक चीज होमवर्क के लिए दे रहे हैं, 0 की पावर n, 1 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आपको ट्यूनिंग मशीन डिजाइन करनी है, राइट? अब आपके पास में सपोज अगर हम इनपुट स्ट्रिंग ले लें 0 0 0, राइट, 1 1 1 2 2 2, राइट? क्लियर? तो आपको इसके लिए ट्यूनिंग मशीन डिजाइन करनी है। कैसे डिजाइन करोगे, क्या फंक्शन लिखोगे, बहुत इजी है, क्योंकि हम उससे पहले टफ मशीन बना चुके हैं, तो ये मशीन आपको बनाना बहुत ईजी है। इसका पीडीए अगर आपको याद होगा, तो पीडीए में हम लोगों ने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन किया था, राइट? यहाँ पे भी कुछ कुछ उसी तरीके से यूज करना है, बट स्टैक इम्प्लीमेंटेशन नहीं यूज करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बेसिस पे इसे डिजाइन करना है, राइट? तो थिंक इट। हाँ, या टेल मी बेटा। तो लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा आज अभी। हाँ बेटा, आज के और कल के दोनों लेक्चर में अपलोड कर दूंगा, कल मैं भूल गया था, राइट? तो आज और कल दोनों के लेक्चर आपके पास अपलोड कर देंगे। तो ट्राई दिस एग्जांपल ऑन योर बेसिस, राइट? इफ यू हैव एनी डाउट, राइट, so you can ask me, otherwise we wind up the class, right? I wait for 3 to 4 minutes. If you have any doubt, you can ask me, right?